आइए आप अपनी आंखें बंद करें और हमारे जीवित परमेश्वर को हम महिमा और सम्मान देंगे। जिस परमेश्वर ने हमें महान रीति से संभाला, पूरा हफ्ता उसने हम सबकी रक्षा की और फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें यह दिन दिखाया। हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे और परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे और धन्यवाद करते हुए उसके सानिध्य उसके सामने आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पवित्र सेनाधीश परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस सुबह के सुंदर समय फिर से एक बार प्रभु इस प्रार्थना सभा में प्रभु हम लोग तेरे साथ में प्रभु परमेश्वर उपस्थित होते हैं और परमेश्वर पिता आपकी प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता को और उपस्थिति को मांगते हैं। मेरे प्रभु पिता यीशु मसीह के नाम से सल्वेशन इन क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्री के लिए प्रभु परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति और महिमा और सम्मान करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से प्रभु पिता आज की संपूर्ण प्रार्थना सभा को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर, हालेलुया। किए हुए सारे उपकारों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद करते हुए हम आपके सामने आते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू सारी स्तुति महिमा और सम्मान के लेने के योग्य परमेश्वर है और हम आपकी स्तुति और महिमा और सम्मान करते हैं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु यहोवा, हालेलुया। तो अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है, दया का सागर है प्रभु पिता। हालेलुया। पूरे हफ्ते में हमसे जो कोई पाप अपराध अन्याय दुष्टता हुई प्रभु उसकी क्षमा कर और प्रभु पिता तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर। गाने की सभा चलाने वाले, गाने वाले, बजाने वाले सबों पर तू अपना आशीष रख और शुरू से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति में हमें चला और हर परिवार को जो जहां भी बैठे हैं, जिस घर में जिस जगह पे बैठे हैं, वहां तेरी उपस्थिति उनके बीच में प्रभु उनके अंदर प्रभु तो ढेल दे। हर एक को स्वर्गीय आनंद और खुशी से शांति से भर दे। हर एक तनाव, हर एक दबाव, हर एक टेंशन प्रभु, एंग्जायटी प्रभु पिता, हर एक प्रकार की प्रभु परमेश्वर परेशानी यीशु मसीह के नाम से चल निकल जाए और तेरे लोग प्रभु तेरे सानिध्य में तेरे सामर्थ और अभिषेक से भर जाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. കർത്തരുടെ നാമത്തെ പരിശുദ്ധം ഉണ്ടാവதாக. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தில் எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள். முதலாவது ஒரு சில தமிழ் பாடல்களை பாடி நாம் தேவனை ஆராதிப்போம். ஹல்லேலூயா. எல்லோரும் தெரிந்த பாடல் விடுதலை கீதங்கள் 49வது பாடல், திருக்கரத்தால் தாங்கியனை. தேவன் தம்முடைய திருக்கரத்தால் நம்மை தாங்கி இம்மட்டுமாய் வழிநடத்தி வருகிறார். ஆமென். தேவ சித்தம், தேவ கிருபை இல்லை என்றால் நமது ஒரு நிமிடம் கூட நமது ஹல்லேலூயா வாழ்க்கையை நடத்த முடியாது. அவரோட திருக்கரத்தால் கோழி தன் குஞ்சுகளை தன் செட்டையின் கீழே வைத்து பாதுகாப்பது போல நம்மை இம்மட்டுமா எத்தனையோ ஹல்லேலூயா. நன்றி நன்றி ராஜா. எத்தனையோ பாடுகள், வேதனைகள், எத்தனையோ சங்கடங்கள் உலகத்திலே ராஜா நேற்று பார்த்தவர்கள் என்று பார்க்க முடியவில்லை. இந்த சூழ்நிலையில் நம்ம சமையல் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஹல்லேலூயா தேவன் தன் கரத்தாலே தாங்கி இம்மட்டுமா இந்த பரிசுத்த ஆராதனையிலே நம்மை கலந்து கொள்ள வைத்த மகா கிருபைக்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தி ஒரு சில தமிழ் பாடல்களை உள்ளத்தில் ஆரத்திலிருந்து நம்மை தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படியாக பாடுவோம். ஆமென். விடுதலையின் கீதங்களிலே 49வது பாடல், திருக்கரத்தால் தாங்கி என்னை. பழைய பாடல், எல்லோருக்கும் தெரிந்த பாடல். திருக்கரத்தால் தாங்கி என்னை திரு சித்தம் போல் நடத்திடுமே. ஆமென், ஆமென். திருக்கரத்தால் தாங்கி என்னை திரு சித்தம் போல் நடத்திடுமே. குயவன் கையில் களிமண்ணான் அனுதினமுயிர் நலைந்திடுமே. குயவன் கையில் களிமண்ணான் அனுதினம் நீர் வணங்கிடுமே. வசனம் தியானிக்கையில் இதயமதில் ஆறுதலே. ஆயிருளில்
நடக்கையிலே தீபமாக வழி நடத்தும். காரிருளில் நடக்கையிலே தீபமாக வழி நடத்தும். திருக்கரத்தால் தாங்கி என்னை திரு சித்தம் போல் நடத்திடுமே. குயவன் கையில் களிமண்ணான் தினமிடுமே. குயவன் கையில் களிமண்ணான் அனுதினம் நீர் மறைந்திடுமே. ஆழ்கடலில் அலைகளினால் அசையும் போது என் படகில் ஆத்மநந்தர் இயேசு உண்டு. சேர்ந்திடுவே அவர் சமூகம். ஆத்மநந்தர் இயேசு உண்டு. சேர்ந்திடுவே அவர் சமூகம். திருக்கரத்தால் தாங்கி என்னை திரு சித்தம் போல் நடத்திடுமே. குயவன் கையில் களிமண்ணாம் அனுதினம் நீர் மறைத்திடுமே. குயவன் கையில் களிமண்ணான் அனுதினம் வரைந்திடுமே. அவர் நமக்காய் ஜீவன் தந்து அளித்தனரே இந்த மீட்பு. கண்களினால் காண்கின்றேனே இன்பம் காணாதே சமதை. கண்களினால் காண்கின்றேனே இன்பம் காணாதே சமதை. திருக்கரத்தால் திரு சித்தம் போல் நடத்திடுமே. குயவன் கையில் களிமண்ணான் அனுதினமுயிர் மலைத்திடுமே. குயவன் கையில் களிமண்ணான் அனுதினம் நீர் நடைந்திடுமே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு பரிசுத்தம் உண்டாவதாக. இன்னொரு மற்றொரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம். ஹல்லேலூயா. உமக்காகத்தானே ஐயா நான் உயிர் வாழ்கிறேன் ஐயா. ஆமென். ஹல்லேலூயா. எல்லோரும் தெரிந்த பாடல் விடுதலையின் கீதங்கள 131வது பாடல். கருத்துள்ள பாடல். தேவனுக்காக உமக்காக தானே ஐயா நான் உயிர் வாழ்கிறேன் என்று நம்மளை நாம் தேவ சமூகத்திலே தாழ்த்தி ஹல்லேலூயா அந்த பாடலை பாடுவோம். ஆமென். உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உற்சாகமாக பாடுவோம். ஆமென். உமக்காக தானே ஐயா நான் உயிர் வாழ்கிறேன் ஐயா. உமக்காக தானே ஐயா நான் உயிர் வாழ்கிறேன் ஐயா. இந்த உடலும் உள்ளமெல்லாம் அன்பர் உமக்காக தானே ஐயா. இந்த உடலும் உள்ளமெல்லாம் அன்பர் உமக்காக தானே ஐயா. கோதுமை மணி போல் மலிந்திடுவேன் உமக்காய் தினமும் பலன் கொடுப்பேன். கோதுமை மணி போல் மடிந்திடுவேன் உமக்காய் தினமும்
பலன் கொடுப்பேன். அவமானம் நிந்தை சிலுவைதனை, அவமானம் நிந்தை சிலுவைதனை அனுதினமும் நான் சுமக்கின்றேன், அனுதினமும் நான் சுமக்கின்றேன். உமக்காகத்தானே ஐயா நான் உயிர் வாழ்கிறேன் ஐயா. உடலும் உள்ளமெல்லாம் அன்பர் உமக்காகத்தானே ஐயா. இந்த உடலும் உள்ளமெல்லாம் அன்பர் உமக்காகத்தானே ஐயா. எனது ஜீவனை மதிக்கவில்லை, ஒரு பொருட்டாய் நான் கணிக்கவில்லை. எனது ஜீவனை மதிக்கவில்லை, ஒரு பொருட்டாய் நான் கணிக்கவில்லை. எல்லாருக்கும் நான் எல்லாருக்கும் நான் எல்லாமானே, அனைவருக்கும் நான் அடிமையானே, அனைவருக்கும் நான் அடிமையானே. உமக்காகத்தானே ஐயா நான் உயிர் வாழ்கிறேன் ஐயா. அந்த உமக்காகத்தானே ஐயா. உடலும் உள்ளமெல்லாம் அந்த உமக்காகத்தானே ஐயா. எத்தனை இடர்கள் வந்தாலும் எதுவும் என்னை அசைப்பதில்லை. எத்தனை இடர்கள் வந்தாலும் எதுவும் என்னை அசைப்பதில்லை. மயில் உடனே ஓடுகிறேன், மயிலுடன் தொடர்ந்து ஓடுகிறேன். மனநிறைவோடு பணி செய்வேன், மனநிறைவோடு பணி செய்வேன். உமக்காகத்தானே ஐயா நான் உயிர் வாழ்கிறேன் ஐயா. இந்த உடலும் உள்ளமெல்லாம் அந்த உமக்காகத்தானே ஐயா. இந்த உடலும் உள்ளமெல்லாம் அன்பர் உமக்காகத்தானே ஐயா. பயன்படுத்தும் உன் சித்தம் போல, பயன்படுத்தும் உன் விருப்பம் போல, பயன்படுத்தும் உன் சித்தம் போல, பயன்படுத்தும் உன் விருப்பம் போல. உன் கரத்தில் நான் புல்லாங்குழல், உன் கரத்தில் நான் புல்லாங்குழல். ஒவ்வொரு நாளும் இசைத்திடுமே, ஒவ்வொரு நாளும் இசைத்திடுமே. உனக்காகத்தானே ஐயா நான் உயிர் வாழ்கிறேன் ஐயா. இந்த உடலும் உள்ளமெல்லாம் அன்பர் உமக்காகத்தானே ஐயா. இந்த உடலும் அன்பர் உமக்காகத்தானே ஐயா. எனது பேச்செல்லாம் உமக்காக,
எனது செயலெல்லாம் உமக்காக, எனது பேச்செல்லாம் உமக்காக, எனது செயலெல்லாம் உமக்காக, எழுந்தாலும் நடந்தாலும் உமக்காக, எழுந்தாலும் நடந்தாலும் உமக்காக, அமர்ந்தாலும் படுத்தாலும் உமக்காக, அமர்ந்தாலும் படுத்தாலும் உமக்காக, உமக்காக தானே ஐயா நான். Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. உமக்காக தான் ஐயா. Amen. ஐயா. Hallelujah. மீண்டும் ஒரு கடைசி பேராகிராஃபை படிப்போம், திரும்ப படிப்போம். எனது பேச்செல்லாம் உமக்காக, எனது செயல்கள் எல்லாம் உமக்காக. நல்ல கடுமையான வார்த்தை. ஆமென். மீண்டும் ஒரு முறை அந்த கடைசி பேராகிராஃப் திரும்ப படிப்போம். எனது பேச்செல்லாம் உமக்காக, எனது செயலெல்லாம் உமக்காக, எனது பேச்செல்லாம் உமக்காக, எனது செயலெல்லாம் உமக்காக, எழுந்தாலும் நடந்தாலும் உமக்காக, எழுந்தாலும் அமர்ந்தாலும் படுத்தாலும் உமக்காக, அமர்ந்தாலும் படுத்தாலும் உமக்காக, உமக்காகத்தானே ஐயா நான் உயிர் வாழ்கிறேன் ஐயா. இந்த உடலும் உள்ளமெல்லாம் அந்த உமக்காகத்தானே ஐயா. இந்த உடலும் உள்ளமெல்லாம் அந்த உமக்காகத்தானே ஐயா. ஹல்லேலூயா. சோத்ரம் சோத்ரம். ஆண்டவரே, நாம் வாழ்வது, நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு காரியமும் தேவனுக்காக. ஆமென். கடைசியாக ஒரு தமிழ் மற்றொரு பாடலை பாடுவோம். மறவாமல் நினைத்தீரையா. எல்லோரும் தெரிந்த பாடல், ஃபாதரோட பாடல், விடுதலைங்கில 162வது பாடல். ஹல்லேலூயா. சோத்ரம் சோத்ரம் சோத்ரம். ஹல்லேலூயா. நன்றி நன்றி நன்றி. எல்லோரும் ஹல்லேலூயா உள்ளத்தில் ஆரத்திலிருந்து படிப்போம். ஜீசஸ் ஜீசஸ். ஹல்லேலூயா. மறவாமல் நினைத்தீரையா. மனதார நன்றி சொல்வேன். ஆமென். ஹல்லேலூயா. தேவன் நம்மளை ஒருபோதும் மறப்பதில்லை ராஜா. தேவன் நம்மளை ஒருபோதும் மறவாமல் நம்மை காத்து வழிநடத்துகிற தேவன். அந்த தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தும்படியாக, இயேசுவுக்கு நன்றி செலுத்தும்படியாக கடைசியாக இந்த ஒரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம். ஆமென். மறவாமல் நினைத்தீரையா. மனதார நன்றி சொல்வே. மறவாமல் நினைத்தீரையா. மனதார நன்றி சொல்வே. இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. நன்றி நன்றி ஐயா. கோடி கோடி நன்றி ஐயா. Jesus, amen. கோடி கோடி நன்றி ஐயா. எபினேசர் நீதானையா. இதுவரை உதவினீரே. எபினேசர் நீதானையா.
இதுவரை உதவினீரே. எல்ரோய் எல்ரோய் என்னையும் கண்டீரே, எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன். எல்ரோய் எல்ரோய் என்னையும் கண்டீரே, எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன். நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. பலவீன நேரங்களில் பலன் தந்தீரையா. பலவீன நேரங்களில் பலன் தந்தீரையா. சுகமானே சுகமானே தழுவுகளால் சுகமானே என் குடும்ப வைத்தியரே. சுகமானே சுகமானே தழுவுகளால் சுகமானே என் குடும்ப மருத்துவ நீரே. நன்றி நன்றி ஐயா. Yes Lord, amen. Hallelujah, hallelujah. நன்றி. Yes Master, amen. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. தடைகளை உடைத்தீரையா, தள்ளாட விடவில்லையே. தடைகளை உடைத்தீரையா. Yes Lord, amen. தள்ளாட விடவில்லையே. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை வந்து வாக்கு தந்து தேற்றினீரே. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றினீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. Yes Lord, hallelujah, amen. நன்றி ஐயா. குறைகளை அனைத்தையுமே மகிமையில் நிறைவாக்கினீ. குறைகள் அனைத்தையுமே மகிமையில் நிறைவாக்கினீ. ஊழியம் செய்வதற்கு போதுமான பணம் தந்து மிதம் மிதமே. ஊழியம் செய்வதற்கு போதுமான பணம் தந்து மிதம் மிதம் எடுக்க செய்தி. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. நன்றி நன்றி ஐயா,
கோடி கோடி நன்றி ஐயா, நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஜீசஸ். Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Song number 316, 316, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, आपका परमेश्वर हमारा उजागर है। उसने आकाश बनाया, पृथ्वी को भी बनाया। उसने आकाश बनाया, पृथ्वी को भी बनाया। उसका शक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, रातों का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, रातों का परमेश्वर हमारा उजागर है। समंदर को जिसने तूफाना, जंगल से मार्ग को निकाला। समंदर को जिसने तूफाना, जंगल से मार्ग को निकाला। हाईवे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। हाईवे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, रातों का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, रातों का परमेश्वर हमारा उजागर है। लाजरस को जिसने जिलाया, कई को जिसने बचाया। लाजरस को जिसने जिलाया, कई को जिसने बचाया। वो जिसके लिए सब है संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, रातों का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, रातों का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने हमको बनाया, जिसने सबको बनाया, जिसने हमको बनाया, जिसने
का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का परमेश्वर हमारा उजागर है। जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। उस पर बनहारी कोई अपना अधिकार। जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, धरती बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा दिखाए, सकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ उसका उस पर भरोसा भरोसा, वो तो कभी नहीं देगा। चाहे बीमारी चाहे गरीब चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी धरी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा दिखाए, सकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। 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 Praise Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. आराधना में जाएंगे और उस खुद के गाएंगे, गीत को गाएंगे। हो तेरी स्तुति आराधना। यहाँ के बंदे हम सब लोग हमारे जीवित परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरे तो इस जगह को भर, जो भी
चाहे तो यहाँ पर हालेलुया 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 मेरा से तू नया दिखाता है बनकर मेरे बचाता है जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हालेलुया 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं उनमें मैं देखूं बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता हालेलुया 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 करुणा से तू दया दिखाता है डाल बनकर मेरे मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हालेलुया 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं तुझको छोड़ कोई उनमें मैं देखूं बस तेरे सामने तू है मेरा पिता हालेलुया 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 हालेलुया
क्षमा करता है। सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्मों को क्षमा करता है। गाओ मेरे साथ, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। करुणा निदान, तू अत्यंत महान है। स्वर्ग के स्वर्ग में है। तू सामर्थ्य भय योग्य है। तू स्वर्ग के स्वर्ग में है। सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। यीशु पवित्र पवित्र है। राजा पवित्र पवित्र है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र। तो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है और हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। पिता, जितने भी भाई बहन इस समय बीमारी में रहेंगे, तकलीफ में, परेशानी में रहेंगे, हमारे अधर्मों को क्षमा करने वाला और हमारे सारे रोगों को चंगा करने वाला, हमें प्रेम, दया और करुणा का मुकुट बांधने वाला परमेश्वर, उपस्थित सारे लोगों के लिए धन्यवाद। जो यहाँ है, जो नहीं है, जहां भी है, जिस स्थिति में है, सब पर तो अपना आशीष रख दे, सबको शांति दे। प्रार्थना करते हैं। साम 40, भजन संहिता 40। Psalm 41:04. Sorry, 40. I'm sorry. Psalm 40. मैं पढ़ता हूं। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआई सुनी। பயங்கரமான சூழலிலும் உளையான சேற்றிலிருந்து என்னை தூக்கி எடுத்து என் கால்களை என் கண்மலையின் மேல் நிறுத்தி என் அடிகளை உறுதிப்படுத்தி उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देख कर करेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। அகங்காரிகளையும் பொய்க்காரர்களையும் நோக்காமல் கர்த்தரையே தன் நம்பிக்கையா வைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तो हमारे लिए करता है वो बहुत से हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करो, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। பலியையும் காணிக்கையும் நீ விரும்பாமல் என் செவிகளை திறந்தீர்। சர்வாங்க தகன பலியையும்
பாவ நிவாரண பலியையும் நீர் கேட்கவில்லை. मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा लिखा हुआ है। என் தேவனே, உமக்கு பிரியமானதை செய்ய விரும்புகிறேன். உமது நியாய பிரமாணம் என் உன்னதத்துக்குள் இருக்கிறது என்று சொன்னேன். मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार को प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया, हे यहोवा तू इसे जानता है। உம்முடைய நீதியை நான் என் இருதயத்துக்குள் மறைத்து வைக்கவில்லை. உமது சத்தியத்தையும் உமது ரட்சிப்பையும் சொல்லியிருக்கிறேன். உமது கிருபையையும் உமது உண்மையையும் மகா சபைக்கு அறியாதபடிக்கு நான் ஒளித்து வைக்கவில்லை. हे यहोवा तू अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத தீமைகள் என்னை சூழ்ந்து கொண்டது. என் அக்கிரமங்களை என்னை தொடர்ந்து பிடித்தது. நான் நிமிர்ந்து பார்க்க கூடாது இருக்கிறது. அவைகள் என் தலை மயிரிலும் அதிகமாய் இருக்கிறது. என் இருதயம் சோர்ந்து போகிறது. हे यहोवा कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। என் பிராணனை அழிக்க தேடுகிறவர்கள் ஏகமாய் வெட்கி நாணி எனக்கு தீங்கு செய்ய விரும்புகிறார்கள். பின்னிட்டு இச்சையடைவார்களாக. जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो। உம்மை தேடுகிற அனைவரும் உமக்குள் மகிழ்ந்து சந்தோஷப்படுவார்களாக. உம்முடைய ரட்சிப்பை விரும்புகிறவர்கள் கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்று எப்பொழுதும் சொல்வார்களாக. तब साथ में मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर विलम्ब न कर। என் தேவனே आमेन। தாமதியாயும் आमेन। ஆமென். जीसस। गवाही का समय है। बहुत सारे लोग आज वीडियो के पीछे छिपे हुए हैं, वीडियो चालू नहीं किया है। उम्मीद करता हूं कि वो लोग सुन रहे होंगे। नेटवर्क इश्यू है पास्टर, बहुत नेटवर्क इश्यू है। हाँ, पूरा अपना 3 दिन से नेटवर्क इश्यू है। ओके, मतलब किसी का वो वीडियो चालू नहीं एटलीस्ट हुआ तो उनको बंद सुनाई देता होगा ना उनको। हाँ, सुनाई दे रहा है, लेकिन कई वीडियो चालू किया तो बंद पड़ जाता है। ओके ओके, ठीक है, चलेगा। 3 दिन से प्रॉब्लम चालू है। ओके ओके, anybody has any testimony? Okay, go ahead brother. No testimony. He has decided the number of the stars and call each one by name. Psalm 147 verse 3 and 4. और चिंतित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक का नाम रखता है। भजन संगीता 147 verses 3 and 4. The plans of heart belongs to man, but the answer of tongue is from the Lord. Proverbs 16:1. For God had not given spirit Time pass no. fear, but the power and of love and of a sound mind.
God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Psalm 46:1. your shot passed to The Lord make his face 1 minute. shine upon सुनाई दे रहा था? नहीं दे रहा है, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो नहीं दिखा दे रहा है? नहीं, 1 minute. Jesus. चलेगा, वचन तो सुनाई दिया ना, रहने दो, हो गया ना अभी। नहीं, आ गया वो। The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. Broken-hearted and bandages they bound. He has decided the number of the stars and call each one by name. Psalm 147 verse 3 and 4. और खेतित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक का नाम रखता है। भजन संगीता 147 verses 3 and 4. The plans of heart belongs to man, but the answer of tongue is from the Lord. Proverbs 16:1. For God has not given us fear, but the power and of love and of a sound mind. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Psalm 46:1. The Lord make his face shine Okay. God bless you, children. Praise God. Okay. आइए हम प्रार्थना करें। वचन में जाने से पहले प्रभु की पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा और सम्मान करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय फिर से एक बार प्रभु परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा मेरी सहायता रखवाई कर। प्रभु परमेश्वर बोलने के लिए धैर्य दे, शब्द दे, मेरे होठ और जुबान को छू ले और प्रभु परमेश्वर तेरे वचन को जिस शब्द में बोलना चाहिए, प्रभु परमेश्वर जिस प्रकार बोलना चाहिए उस प्रकार बोलने के लिए मुझे ताकत दे। पवित्र आत्मा हालेलुया, पूर्णतः मेरे मन मेरे बुद्धि का ताबा तुले और कुछ भी मैं अपनी कल्पना से मेरे बुद्धि से न बोलूं, लेकिन पवित्र आत्मा तू अपने वचन, तू अपने शब्द मेरे मुंह में डाल ताकि तेरे लोगों तक तेरा वचन में पहुंचा सकूं और तेरे लोग सुनकर आशीषित हो। इस विषय पर बोल रहा हूं, उस विषय पर बोलने के लिए प्रभु मुझे अनुग्रह दे, ज्ञान और बुद्धि से मुझे भर दे। और सुनने वाले सारे लोगों के लिए धन्यवाद और हमारे सारे बच्चों के लिए धन्यवाद जिन्होंने प्रभु वचन को दोहराया। उन बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। तो सारे बच्चे प्रभु तेरे वचन को प्रभु परमेश्वर हर संडे दोहराते हैं और प्रभु परमेश्वर तेरे वचन को प्रभु परमेश्वर हृदय में रखते हैं। यीशु मसीह के नाम से उन बच्चों को आशीषित कर। तो सारे बच्चे प्रभु तेरे वचन को बाहर करते हैं और प्रभु सुनाते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुना पहन कर, आमेन। Praise God. So हम जाएंगे अपने विषय पर।
दो विषय कि स्वर्ग में हम कैसे दिखेंगे या हम क्या कुछ होंगे, what we will how we will look in heaven, हम स्वर्ग में कैसे दिखेंगे। और मैं गए इतवार को लूका के सुसमाचार तक पहुंचा था। लूका की सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ लूक और चैप्टर 20 अध्याय में मैं आया था, जिसमें यीशु को सवाल पूछा गया उन भाइयों ने कि जिन्होंने एक पत्नी से शादी की थी, और वो कहते हैं कि वो बिना संतान सब मर गए, तो पुनरुत्थान के बाद वो किसकी पत्नी होगी। तो यीशु ने उनको कहा था कि इस युग के संतानों में शादियां होती हैं, विवाह होता है, पर जो लोग उस काल और उस युग के लिए या पुनरुत्थान के लिए योग्य ठहरेंगे, वे लोग न तो विवाह करेंगे न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु वे फिर मरने के भी नहीं, वे फिर मरेंगे भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और परमेश्वर के पुनरुत्थान के संतान होने के नाते वे परमेश्वर की भी संतान होंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो ये जो उनका उलझन था, कंफ्यूजन था कि स्वर्ग में क्या में हमारी पत्नियां होगी, तो इन लोगों का संदेह जो था, उलझन था, यीशु मसीह ने दूर कर दिया। स्वर्ग में शादियां नहीं होगी, हम सब दूतों के समान होंगे। प्रेज गॉड। सो वो ऐसा शरीर जो कभी खत्म नहीं होगा, इमॉर्टल बॉडी रहेगा, इमॉर्टल यानी कि अविनाशी शरीर, जिस पर किसी भी बाहरी वातावरण का या और किसी चीज का परिणाम नहीं होगा, और हमारा रूप परमेश्वर के दूतों के समान होगा। प्रेज गॉड। सो ये थे लूका के सुसमाचार की बात। अब हम जाएंगे यूहन्ना की सुसमाचार चैप्टर 20 यूहन्ना के सुसमाचार चैप्टर 20 और वर्स 19 और 20। रीड जेकब। Yes, Pastor. War 1920, right, Pastor? 19-20 chapter 20 verse 19 and 20. வாரத்தின் முதல் நாளாகிய அன்றைய தினம் சாயங்கால வேளையிலே சீசர்கள் கூடியிருந்த இடத்தில் யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் கதவுகள் பூட்டியிருக்கையில் இயேசு வந்து நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார். அவர் இப்படி சொல்லி தம்முடைய கைகளை விலாவையும் அவர்களுக்கு காண்பித்தார். சீசர்கள் கர்த்தரை கண்டு சந்தோஷப்பட்டார்கள். मैं पढ़ता हूं। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, यानी कि संडे, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर, आवाज आ रहा है किस चीज का? यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। अब यहां हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर होगा, आत्मिक स्वर्गीय शरीर होगा, उस शरीर के लिए किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। यहाँ हमें उदाहरण दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है कि जब यीशु मसीह जीवित हुआ तो उस समय डर का माहौल फैला हुआ था और चेले अपने अपने घरों में बंद थे, छिपे हुए थे यहूदियों के डर के मारे, क्योंकि
वे उनको मारने के लिए आते थे, उनको धमकियां देते थे और माहौल बहुत ही भयंकर था। और इसलिए उनको लगा था कि अब हमारा यीशु मसीह हमारा गुरु चला गया और अब हमारा कोई गुरु नहीं है, अब हम क्या करेंगे। तो यीशु मरा लेकिन जी उठा, ये उनको पता नहीं था। तो यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से उनके बीच में आया। बाइबल कहती है कि सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन वचन के अनुसार, यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार संडे सप्ताह का पहला दिन होता है। और शाम के समय यीशु मसीह उनके पास, उनके घर में आया। और कब आया? पूरी तरह से दरवाजे और खिड़कियां बंद थे और ये अंदर ही अंदर बैठकर बातें कर रहे थे या प्रार्थना कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। लेकिन बाइबल कहते हैं कि यहां यीशु मसीह आकर उनके बीच में खड़ा हुआ और कहता है तुम्हें शांति मिले। यानी कि वो शरीर, जो शरीर तुम्हें मिलने वाला है, वो शरीर के लिए दीवारें रुकावट नहीं होगी, खिड़कियां या कुछ भी, कोई भी अन्य वस्तु रुकावट नहीं होगी। वो शरीर एक आत्मिक शरीर होगा, वो शरीर कहीं भी किसी भी समय जा सकता है। तो हमारा शरीर, हमें भी वही शरीर दूतों के समान वो शरीर हमें मिलेगा, जो जिस शरीर को कोई रुकावट नहीं होगी। That will be a unlimited, okay, power. We will have unlimited power. And we will have supernatural body, the spiritual body, and it will penetrate anywhere. वो कहीं भी जा सकता है। Praise the Lord. So that will be a great blessing for us. Or this body will be immortal body. Praise God. Immortal. जो कभी खत्म नहीं होगी, किसी चीज से खत्म नहीं होगी और कोई उसे मार भी नहीं सकता। ऐसा ये शरीर परमेश्वर तुम्हें और हमें देने वाला है। 26 में, 26 में, the same chapter, verse 26 or 27, 26 and 27. Read it, Jacob. மறுபடியும் 8 நாளைக்கு பின்பு அவருடைய சீஷர்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தார்கள். தோமாவும் அவர்களுடனே கூட இருந்தான். கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது. அப்பொழுது இயேசு வந்து நடுவே நின்று, உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார். பின்பு அவர் தோமாவை நோக்கி, நீ உன் விரலை இங்கே நீட்டி என் கைகளை பார், உன் கையை நீட்டி என் விலாவிலே போடு, அவிசுவாசியாய் இராமல் விசுவாசியாய் இரு என்றார். यहाँ इस वचनों में ऐसा लिखा है कि जब पहले बार यीशु मसीह उन चेलों के बीच में आया था, थोमा, यीशु का चेला थॉमस उनके साथ नहीं था। तो 8 दिन के बाद फिर से प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में चला आया और फिर से बाइबल कहती है कि 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था, द्वार बंद थे। और तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। वही शब्द उसने इस्तेमाल किए ताकि कोई शक ना हो, वही शब्द इस्तेमाल किए, पीस बी टू यू। क्यों यीशु ने उन्हें शांति दी? क्योंकि ये बड़े ही उलझन में थे और बड़े ही संकट में थे, डरे हुए थे और यीशु मसीह इस डर में उन्हें शांति देता है। हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु मसीह ये कोरोना वायरस के डर में प्रभु तुम्हें और हमें कहता है डरो मत, पीस बी टू यू। हालेलुया। मेरे लोगों, तुम्हें शांति मिले, मैं तुम्हारे बीच में हूं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहते है यीशु उनके चेलों के बीच में आकर खड़ा हुआ। आज यीशु हमारे अंदर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु हमारे अंदर है और वो हमें हमेशा कहता है माय सन, माय डॉटर, माय पीपल, डू नॉट वरी, पीस बी टू यू। हालेलुया। जितने भी लोग सुन रहे होंगे, जिस स्थिति में आप हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु तुम्हें आज कहता है माय सन, माय डॉटर, पीस बी टू यू, आई एम विथ यू। प्रेज द लॉर्ड। टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड आई एम विथ यू, डू नॉट वरी। प्रेज गॉड। सो यीशु उनका हौसला, उसकी हिम्मत बढ़ा रहा है और आज ये वचन तुम्हें और हमें प्रभु जो सुना रहा है, हमें भी वो धैर्य दे रहा है। हम सब
कई चीज में डरते हैं, कई चीज में कमजोर पड़ते हैं, लेकिन वचन तुम्हें और हमें धीरज देता है। वचन तुम्हें और हमारे विश्वास बढ़ाता है, हमारी ताकत और हमारी आशा को बढ़ाता है। तो इसीलिए ये वचन जो है हमारे लिए जीवन का दायक वचन है। यीशु उनके बीच में फिर से आया जब दरवाजे बंद थे। प्यारे भाई और बहनों, आज कितने भी दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो, दुनिया ने तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दिए होंगे, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी यीशु तुम्हारे बीच में, हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहूदियों के डर के हमारे दरवाजे बंद थे। आज प्यारे भाई और बहनों, सरकार ने हमारे लिए कई सारे दरवाजे बंद किए हैं, लेकिन यीशु का दरवाजा कभी बंद नहीं हो सकता। यीशु खुद ही द्वार है। हालेलुया। और जो द्वार उसने तुम्हारे लिए, मेरे लिए खोला है, वो कोई बंद नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। कल मैंने एक बात सुनी, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको सुनाता हूं। ऑस्ट्रेलिया जैसा क्रिश्चियन देश जिसमें बहुत सारे बिलीवर है, मैंने वहां का एक रिपोर्ट पढ़ा। सुने सब लोग, जो वीडियो नहीं सुने के वो भी सुने। वहां की सरकार ने ऐसा एक बिल पास किया है और वहां के पुलिस अधिकारियों को इतना पावर दिया गया है कि किसी भी प्रकार के सस्पिशियस, कोई कोरोना वायरस का सस्पेशन पेशेंट रहेगा, सस्पिशियस, उसको कोरोना हुआ ऐसा साबित नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना हो सकता है, किसी के कांटेक्ट में आया है, तो उनके बारे में, उन लोगों के बारे में गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है, नियम बिल लाया है कि बिना वारंट किसी भी स्थिति से वे लोग उनको उठाकर अलग कर सकते हैं। यहां तक कि 30 मंथ का बच्चा रहेगा, 30 महीने का बच्चा, वो भी उसको उठाकर वे लोग दूसरी जगह डाल देंगे, माँ बाप से अलग करेंगे। और इस बिल के वजह से, इसलिए कि उनको उन लोगों को, पुलिस वालों को, अधिकारियों को इतना पावर दिया गया है कि वे किसी भी समय किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, जिनके बारे में उनको डाउट आता है कि ये कोरोना वायरस के चपेट में आया है, कोरोना हुआ ऐसा स्थापित नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ है, चेक नहीं किया है, लेकिन फिर भी उन लोगों को उठाकर वो बंद कर सकते हैं या डिटेंशन सेंटर में डाल सकते हैं, या फिर उन्हें अलग कर सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को भी माँ बाप से अलग करने का एक ऐसा बिल उन्होंने लाया। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के लोग रास्ते पर हैं और वे लोग उन बिल को विरोध कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये सब डर का माहौल है। देखो, 6 फीट की दूरी, 2 गज, वाई? आपको पता है ये 6 फीट क्या है? 6 is the number of man and 666 is the number of beast, शैतान का नंबर है। और उन्होंने एग्जैक्टली 6 फीट ही दूरी क्यों बनाई है? सोचने वाली बात है ना, क्योंकि उनके एजेंडे में है ये सारी बातें, जो उनके एजेंडे में है। और उन्होंने बराबर 3 फीट ने, पहले 3 फीट निकाला, अब 6 फीट यानी कि 2 गज। क्यों दूरी? अरे भाई और बहनों, दूसरी बात कि सोशल डिस्टेंसिंग, इतने सारी बीमारियां दुनिया में आई, तब कभी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं लाया था। इसी बीमारी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग क्यों? अरे भाई और बहनों, इस चीज को लेकर वे लोग विश्वासियों को, कलीसिया को, जो फेलोशिप चलती है, शैतान की चाल देखो, किसी को समझ में नहीं आता है, उनको कोरोना की वजह से, लेकिन शैतान इस चीज को लेकर विश्वासियों को दूर कर रहा है। आज चर्च क्या है? एक दूसरे से दूर है कि नहीं है? पूरी दुनिया भर में चर्च के लोग, कलीसिया के लोग एक दूसरे से दूर है। इस तरह से प्रार्थना सभा में कंप्यूटर पर या मोबाइल पर प्रार्थना करते हैं, और शैतान ने इस सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कलीसिया को अलग कर दिया है, और इस वजह से कई सारी कलीसिया बहुत कमजोर पड़ी हुई है। कई सारे विश्वासी लोग कमजोर पड़े हुए, उन लोगों को फेलोशिप नहीं मिलती है और फेलोशिप नहीं मिल रही है। ये सब शैतान का कपट कारस्तान है। मेरे भाई और बहनों, ये सारी बातें इस दुनिया में हो रही है। प्रेज गॉड। यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। आज तुम्हें प्रभु यीशु शांति दे रहा है। जितने भी जीवन में डर रहेगा, प्रभु कहता है शांति मिले। तुम्हारे बीच में, हमारे बीच में यीशु है। चेलों के दरवाजे बंद थे, आज तुम्हारे लिए, मेरे लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद है। कोई किसी के घर में जाने के लिए डरता है, एक साथ बैठने के लिए डरता है, हाँ, मिलने के लिए डरता है, लेकिन प्रभु कहता है तुम्हें शांति मिले क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, हम जाएंगे
बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों की किताब चैप्टर 5 वर्स 23। प्रेरितों की किताब 5वीं अध्याय और 23 वचन। 23 रीड। சிறைச்சாலை மிகுந்த பத்திரமாய் பூட்டப்பட்டிருக்கவும் காவற்காரர் வெளியே கதவுகளுக்கு முன் நிற்கவும் கண்டோம். திறந்த பொழுதோ உள்ளே ஒருவரையும் காணோம் என்று அறிவித்தார்கள். हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई नहीं मिला। यहाँ आप देखते हैं कि जब चेलों की गिरफ्तारी हो गई तो रात को दूत अंदर आया, दरवाजे खोले, किसी को पता नहीं चला और उन चेलों को बाहर रास्ते पर लाकर कहा, जाओ और मंदिर में खड़े होकर प्रचार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। दूत अंदर गया, किसी को पता नहीं चला। दिस बॉडी, ये शरीर तुम्हें और हमें मिलने वाला है। हम कहीं भी उस 1000 साल के राज्य में और इटर्निटी में परमेश्वर हमें जहां भेजेगा, जो भी कोई कार्य करेगा, हम दुनिया के कोने कोने में कहीं भी जा सकेंगे, किसी भी वक्त बिना रुकावट। कोई बुकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हमें ट्रेन पकड़ने की जरूरत पड़ेगी। हमारा शरीर ऐसा शरीर रहेगा जो कहीं भी किसी भी वक्त कहीं भी जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहीं भी जो भी काम हमें रहेगा, हम जाकर वहां सेवा करेंगे और प्रभु ने दिया हुआ काम जो हमें मिलेगा वो हम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ दरवाजे बंद है, लेकिन दूत आया, दूत ने दरवाजा खोला। पहरेदारी थी, सब कुछ था, एकदम स्ट्रिक्ट पहरेदारी थी, लेकिन फिर भी दूत गया, उसने खोला, तब तक किसी को पता भी नहीं चला और दूत ने उसको बाहर निकल कर वे चले गए और मंदिर में जाकर प्रचार करने लगे। हालेलुया। वे कहते हैं कि हमने तो दरवाजे बंद किए थे और पहरा भी लगा दिया था, लेकिन जब हम भीतर गए, अंदर गए तो कोई मिला नहीं। ये है वो स्पिरिचुअल सुपरनैचुरल बॉडी जो तुमको और हमको मिलने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही इसीलिए हम जीते हैं, क्योंकि प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें इसी के लिए बुलाया है कि हम हमेशा के लिए अनंत काल तक जीवित रहे, प्रभु यीशु के साथ राज्य करने के लिए। बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 22। बुक ऑफ गलेशियंस, गले की किताब, गलतियों की किताब चैप्टर 3 वर्स 23 वर्स 22। Words? 3:22। नहीं, வேலைக்காரரை सॉरी, वो नहीं, वो कुछ गलत है, वो नहीं। लूका की सुसमाचार चैप्टर 24, गॉस्पेल ऑफ लूक, सॉरी, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 from verse 36 to 43. Okay. Yeah, read 36 to 43. ஓகே பாஸ்டர். இவைகளை குறித்து அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் இயேசு தாமே அவர்கள் நடுவே நின்று, உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார். அவர்கள் கலங்கி பயந்து ஒரு ஆவியை காண்கிறதாக நினைத்தார்கள். அவர் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் ஏன் கலங்குகிறீர்கள்? உங்கள் இருதயங்களில் சந்தேகங்கள் எழும்புகிறது என்ன? நான் தான் என்று அறியும்படி என் கைகளையும் என் கால்களையும் பாருங்கள், என்னை தொட்டு பாருங்கள். நீங்கள் காண்கிறபடி எனக்கு மாம்சமும் எலும்புகளும் உண்டாயிருக்கிறது போல ஒரு ஆவிக்கு இராதே என்று சொல்லி தம்முடைய கைகளையும் கால்களையும் அவர்களுக்கு காண்பித்தார். ஆனாலும் சந்தோஷத்தினால் அவர்கள் இன்னும் விசுவாசியாமல் ஆச்சரியப்படுகையில், புசிக்கிறதற்கு ஏதாகிலும் இங்கே உண்டா என்று அவர்களிடத்தில் கேட்டார். அப்பொழுது பொரித்த மீன் கண்டத்தையும் தேன்கூட்ட துணிக்கையும் அவருக்கு கொடுத்தார்கள். அவைகளை அவர் வாங்கி அவர்களுக்கு முன்பாக புசித்து. Okay, read. Okay.
वे ये बातें कह रहे थे कि आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। फिर से एक बार यीशु मसीह उनके बीच में खड़ा हुआ और जो मार्ग में वे लोग चल रहे थे और उनके बीच में यीशु आकर खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। एम्माउस के रास्ते में यीशु मसीह ये लोग जब चल रहे थे, बाइबल कहती है, तब प्यारे भाई और बहनों उन लोगों के बीच में यीशु मसीह आया। ओके, और यहाँ भोजन करने के लिए बैठे थे, तब यीशु मसीह चेलों को दिखाई दिया और उस समय ये लोग डर गए। तो यीशु ने उन्हें एक जो बात कही वो हमारे लिए हमें हमें पढ़ने लायक है और हमें समझने के लायक है। वो कहता है कि क्यों घबराते हो? Why you are afraid? तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? ये संदेह दुनिया भर के कई सारे कलीसिया के लोगों के बीच में आज भी है। आज भी लोग यीशु मसीह के वापस आने पर विश्वास नहीं करते हैं। आज भी ऐसे भी आधे अधूरे विश्वास है जिनको ये विश्वास नहीं कि यीशु मसीह वापस आएगा और प्रभु हमें लेके जाएगा और पुनरुत्थान होगा। ऐसे बहुत सारे लोग मानते हैं, कई सारे ऐसे पंथ हैं जो इस पर विश्वास नहीं करते हैं। एक यीशु ने उनको कहा कि क्यों घबराते हो, तुम्हारे मन में संदेह क्यों उठते हैं? अगर किसी के मन में कोई संदेह होगा तो आज ये संदेह दूर हो जाएगा। किसी को लगता है कि क्या हमारा शरीर किस प्रकार का रहेगा, तो यीशु उनको अपने शरीर के बारे में बताता है। वो कहता है मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। आमेन। यीशु मसीह स्थापित करता है, साबित करता है कि मैं वही हूं, मैं भूत नहीं हूं। उनको लगा कि भूत है, लेकिन यीशु कहता है मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो। दैट मीन्स we can touch the body. In the heaven, you can touch me, I can touch you. Praise the Lord. हम लोग एक दूसरे को छू सकेंगे। मुझे छू कर देखो, क्योंकि जैसे आत्मा की हड्डी मांस नहीं होती है। वाव, हाँ, आत्मा को कोई मांस या कोई शरीर नहीं होता है। यीशु ने उनको कहा आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हैं। वाव, Praise the Lord. यानी कि resurrected body को भी मांस रहेगा और हड्डी रहेंगी, लेकिन उसकी सुंदरता, उसकी रचना स्वर्गीय शरीर जैसी होगी। Praise the Lord. ये पृथ्वी का शरीर और मांस ये अलग है, ये नाश होने वाला है, लेकिन स्वर्ग का शरीर जो रहेगा वो नाश नहीं होगा। उसको भी मांस रहेगा, ये हड्डी रहेगी, लेकिन वो अविनाशी शरीर होगा। हर एक बीमारी से दूर होगा, हर एक प्रकार के पाप के परिणाम उस पर नहीं होगा, किसी भी प्रकार की दुष्ट शक्ति का परिणाम उस पर नहीं होगा। वो कहता है कि मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझे तुम देखते हो। ओके, यह कहकर उसने उन्हें अपने पांव दिखाए, हाथ पांव दिखाए। क्यों दिखाए हाथ पांव? यीशु परमेश्वर ने बड़े बुद्धिमत्ता से यीशु के पुनरुत्थित शरीर पर वो किले के निशान पैर पर और हाथ पर रखे हुए थे और यीशु ने उनको अपने हाथ पर दिखाए। और देखो, आपने जैसे मुझे देखा था, मुझे क्रूस पर लटकाया था, हाथों में किले ठोके थे, पांव में किले ठोके थे, इसके निशान देखो। और उन निशानियों को उसने दिखाया और यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। अब जब आनंद के मारे उनकी प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा क्या तुम्हारे पास यहाँ कुछ भोजन है? और एक उन्हें वो प्रूफ देता है कि मैं वही हूं। हाथ पैर भी दिखाया, शरीर भी दिखाया, छुने के लिए कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक प्रूफ देता है कि क्या आपके पास यहाँ कुछ खाने के लिए है? ओके, और यहां उन्होंने उसे भूनी हुई, ओके, फ्राई की हुई नहीं, आग में ताई हुई भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उनके सामने खाया।
लोग आप कहेंगे पास्टर हम लोग स्वर्ग में खाएंगे पिएंगे क्या? क्या हमें स्वर्ग में कुछ मिलेगा कि हम भूखे रहेंगे, कैसे रहेंगे? क्या ये शरीर में हम खा सकेंगे? तो हमारा डाउट यहाँ दूर हो जाता है, क्योंकि यीशु ने पुनरुत्थित शरीर में इस स्पिरिचुअल बॉडी में होते हुए यीशु ने उनके सामने वो खाया पिया। उसने उस मच्छी का भुना हुआ जो टुकड़ा था वो उसने खाया। इससे ये साबित होता है कि वो शरीर में होकर वहां खाना पीना भी होने वाला है। ओके, मेमने का विवाह आया है और सारी तैयारियां हुई है और वहां भोजन का भी प्रबंध किया हुआ है। आपने देखा रेवलेशन 19 में हम पढ़ते हैं वहां। लेकिन कुछ कुछ संत के लोग बोलते हैं ना वो सब स्पिरिचुअल तौर पर है, वैसा कुछ खाना पीना वैसे कुछ बातें स्वर्ग में नहीं होने वाली है। लेकिन इन वचनों के अनुसार हमें एक आइडिया मिलती है, हमें कुछ चिन्ह मिलते हैं कि वो शरीर में हम क्या क्या कर सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो उन्होंने खाया पिया, फिर उसने कहा ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था से लेकर भविष्यवक्ताओं और भजनों में किस पुस्तक में मेरे पीछे में लिखी थी सब पूरी हो। तो यहाँ यीशु ने उनके डाउट को, उनके संदेह को दूर किया और यीशु ने अपनी पहचान एक बार नहीं कई बार उनको दिलाई, ताकि वो विश्वास करे कि मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ चलता था। हालेलुया। जिसने तुम्हारे सामने चमत्कार किए, मुर्दों को जिलाया, आंधी तूफान को थमाया था, वो मैं ही हूँ। हालेलुया। जिसने स्वर्गीय बातें तुम्हें सुनाई थी, वो मैं ही हूँ। और इस प्रकार से हमें सीखने को मिलता है कि हमारा स्वर्गीय शरीर कैसा हो सकता है। इसकी कुछ झलके प्रभु के वचन में हमें दिखाई देती है, लेकिन पूरी तरह से जब हम वहां पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो वहां कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन कुछ बातें यहाँ हमें सुनाई देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। ओके। और फर्स्ट करिंथियंस, पहला करिंथी 15:6, पहला करंती चैप्टर 15 वर्स 6। पढ़ो। அதன் பின்பு அவர் 500 பேருக்கு அதிகமான சகோதரருக்கும் ஒரே வழியில் தரிசனமானார். அவர்களில் அநேகர் இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிறார்கள், சிலர் மாத்திரம் முத்திரை அடைந்தார்கள். बस 6। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। यहां भी और एक प्रमाण दिया गया है कि पहले 12 चेलों को, 10 चेलों को दिखाई देता था, लेकिन अब यहाँ वो 500 से अधिक लोगों को एक साथ दिखाई दिया, एक साथ। और पौलुस कहता है कि सबसे बाद में जैसे मैं अधूरी दिन का जन्मा हुआ हूं, मुझे भी वो दिखाई दिया। कहां लिखा हुआ है? बुक ऑफ एक्ट्स 9 में यीशु मसीह पौलुस को प्रकट होता है, जिस समय उसको घोड़े पर से गिराया और यीशु उससे बातें कर रहा था। तो ये उसकी गवाही दे रहा है कि इन सबको यीशु मसीह दिखाई दिया और उसके बाद मुझे भी उसकी आवाज और उसकी रोशनी दिखाई दी, और वो ही यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। ऐसी गवाही वो देता रहा, जो पहले यीशु और यीशु के लोगों का छल करता था, सताव करता था, कि बाद में यीशु उसके ही जीवन में आया और उसके जीवन का परिवर्तन हुआ। तो यहाँ और एक प्रमाण दिखाई दिया कि एक दो लोगों को नहीं, सैकड़ों लोगों को प्रमाण देकर चला गया कि मैं हूं, मैं आया था, मैं मर गया और आज मैं जीवित हूं और मैं हमेशा के लिए जीवित हूं। हालेलुया। और जिसलिए मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। और इसी रीति से प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें बुलाया है इन बातों पर विश्वास करने के लिए, और ये साबित करता है, ये वचन प्रमाण देता है कि हमें एक नया शरीर मिलेगा और हमारा रूप स्वर्ग में जो दूत है उन दूतों के समान होगा। अंत में हम जाएंगे रेवलेशन चैप्टर 1, बुक ऑफ रेवलेशन
और प्रकटीकरण की किताब पहले अध्याय में उसका वर्णन किया गया है और ये विषय फिर खत्म हो जाएगा। ओके, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर A1 वर्स 10 to 14। चैप्टर 1 फर्स्ट। चैप्टर 1 10 से लेकर 14 तक। கர்த்தருடைய நாளில் ஆவிக்குள்ளானேன். அப்பொழுது எனக்கு பின்னாலே எக்கால சத்தம் போன்ற பெரிதான ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன். அது நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும் முந்தினவரும் பிந்தினவருமாயிருக்கிறேன். நீ காண்கிறதை ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி ஆசியாவில் இருக்கிற எபேசு, சிமிர்னா, பெர்கமு, தியத்தீரா, சர்தை, பிலதெல்பியா, லவோதிக்கியா என்னும் பட்டணங்களில் உள்ள 7 சபைகளுக்கும் அனுப்பு என்று விளம்பினது. அப்பொழுது என்னுடனே பேசின சத்தத்தை பார்க்க திரும்பினேன். திரும்பின போது 7 பொன் குத்து விளக்குகளையும் அந்த 7 குத்து விளக்குகளின் மத்தியிலே நிலையங்கி தரித்து மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டியிருந்த மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பானவரை கண்டேன். அவருடைய சிரசும் மயிரும் வெண்பஞ்சை போலவும் உறைந்த மலையை போலும் வெண்மையா இருந்தது. அவருடைய கண்கள் அக்கினி ஜுவாலை போல் இருந்தது. आपने रेवलेशन 1 10 to 14 पढ़ा? 10 to 14 तक रेवलेशन 1 ना? ओके, रेवलेशन 1। ओके, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द कहते हुए सुना, जो कुछ तो देखता है उसे पुस्तक में लिखकर उन 7 कलीसिया के पास भेज दिया। इफिसुस, स्मुर्ना और एक कलीसिया के नाम दिए गए हैं। तब जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए मैं अपना मुंह फेरा, तब पीछे मुड़कर मैंने सोने के साथ दिवटे देखी और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने हुए और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। ये प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थित शरीर और महिमामय शरीर का वर्णन यहाँ दिखाया गया है। ये यहाँ लिखा गया है कि मनुष्य का रूप, मनुष्य का पुत्र सदृश, यानी कि पुनरुत्थित शरीर में होकर भी यीशु का रूप एक परमेश्वर और मनुष्य के रूप में था, ऐसा वचन में स्पष्ट लिखा गया। और ये 7 दिवट यानी कि 7 लैम्प्स, ये 7 लैम्प्स, ये 7 कलीसिया, यानी कि कलीसिया के बीच में मनुष्य का पुत्र सदृश वहां घूम रहा था और पुरुष देखा जिसने वस्त्र पहने हुए थे। यानी कि स्वर्ग में हमें भी कुछ ऐसे वस्त्र होंगे जिसके बारे में रेवलेशन 19 लिखा हुआ है कि हमें भी धार्मिकता के वस्त्र या फिर वहां पवित्र वस्त्र हमें दिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह यीशु ने वस्त्र पहने हुए हैं, पांव तक, बाइबल कहते हैं पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुआ। ये सोने का पट्टा अधिकार को दिशा दिखाता है, सामर्थ्य को दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, और राजा का भी प्रतीक होता है। तो ये बांधे हुए था जिसको दिखाता है कि यीशु का रूप इस तरीके से था। हालेलुया। और उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, उसकी आंखें आग की ज्वाला की समान थी। दिस इज द स्पिरिचुअल ब्यूटी ऑफ बॉडी। हमारे बाइबल कहते जब यीशु प्रकट होगा तो हम भी बाइबल कहते उसी के समान होंगे। ये हमने पहला यूहन्ना की पत्री में 5 अध्याय में पढ़ा था कि हम क्या कुछ होंगे पता नहीं, लेकिन जब वो प्रकट होगा तो बाइबल कहते हैं हम उसके समान होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्यारे भाई और बहनों, वचनों में कुछ इस तरह से बातें हमारे लिए लिखी हुई हैं कि इसे पढ़कर हम जान सके कि हमारा स्वर्गीय शरीर कितना अद्भुत होगा। ये शरीर में दुख है, संकट है, कष्ट है, परेशानियां है, लेकिन वो शरीर में ये कुछ नहीं होगा। वो महिमामय शरीर होगा और इसी पुनरुत्थान के शरीर को पाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें चुना है और इसीलिए हम यीशु के आने के बाद चाहते हैं, क्योंकि हम इस मंडप को, इस शरीर को यहीं छोड़ेंगे और परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ एक नया शरीर हम प्राप्त करेंगे और उस शरीर में रहकर यीशु के साथ
हजारों सालों तक, अनंत काल तक राज्य करने वाले हैं। और यही आशीष की बात है। और प्यारे भाई और इसीलिए प्रभु के लिए जियो, प्रभु की सेवा करो, प्रभु की प्रार्थना करो, उसके करीब जाओ, क्योंकि यीशु के आने का समय बहुत नजदीक है। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु तुम्हें इन वचनों के द्वारा आशीषित करे और परमेश्वर तुम्हारा भला करे और प्रभु के आने की बाट जोते रहना। और ये शरीर प्राप्त होने के लिए, ये पुनरुत्थान का शरीर प्राप्त करने के लिए काम करते रहना, विश्वास में बने रहना, क्योंकि ये बातें विश्वास की बातें हैं जो विश्वास के द्वारा देखी जाती हैं और पहचानी जाती हैं। Praise the Lord। सो आइए हम आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। और हम प्रभु के भंडार में अपना भेंट, तो अपनी भेंट रहेगी, उस भेंट को भी हम अपने हाथ में ले ले, ताकि परमेश्वर आपको और आपके काम को, आपके परिवार को आशीष करे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए जो संदेश तेरे लोगों को पहुंचाया, एक पुनरुत्थित शरीर के बारे में कि हम स्वर्ग में कैसे दिखेंगे, उसके कुछ हल्के, उनके कुछ वचन जो प्रमाण तेरे वचन में दिए हैं, उनको, उन वचनों को, उन प्रमाणों को तेरे लोगों तक पहुंचाए कि तेरे लोग विश्वास करें और प्रभु परमेश्वर धैर्य के साथ, धीरज के साथ, विश्वास के साथ तेरी बाट जोते रहे और उस दिन तक पहुंचे जो दिन तूने हमारे लिए चुना है। प्रभु जी, इन सब लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूँ, उनके परिवार को आशीर्वाद देता हूँ, उनका काम धंधा नौकरी पर आशीर्वाद देता हूँ, उनके बीवी बच्चों पर आशीर्वाद देता हूँ। परमेश्वर पिता, इस समय तेरे लोग तेरे भंडार में जो भेंट अर्पण करेंगे, उनकी भेंट को तो स्वीकार करना और प्रभु परमेश्वर उनके लिए उनका काम धंधा नौकरी भी आशीषित करना। जिनको दिया है प्रभु, अगर वो सेवा के खातिर दे और प्रभु तेरी महिमा करे। और प्रभु परमेश्वर उन सबों को तो अपने पवित्र नाम में संभालना तेरे आने के दिन तक, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। फिर से एक बार अगले संडे हम एक साथ आएंगे, तब तक हम सबों की रक्षा कर, हमारे बच्चों की रक्षा करना प्रभु जी। और हालेलुया, सारे उद्धार नस्ल कलीसिया के लोगों को तो अपने नाम में प्रभु परमेश्वर संभालना, सारे आपत्ति विपत्ति से, दुर्घटना से और हर बीमारी से प्रभु तो हमारी सबकी रक्षा करना। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। सब लोग कहे आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हमेशा बने रहे। आमीन। ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். ஹல்லேலூயா, Amen. ஹல்லேலூயா, Hallelujah. Praise ஹல்லேலூயா. God। सबों को जय मसीह। सारे भारत देश में हमारे जो फैले हुए लोग हैं, महाराष्ट्र में फैले हुए